Morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter Mahatma Gandhi and Nationalist movement. Today we are going to discuss the point a leader announced himself. In January 1915, Mohandas Karamchandra Gandhi returned to his homeland. After 2 decades of the resistance abroad, the year had been spent for the most part in South Africa, where he went as a lawyer and in time became a leader to the Indian community in that territory. As historian Chandran Devan Sen has remarked, South Africa was the making of the Mahatma. It was in South Africa that Mahatma Gandhi first forged the distinctive technique for non-violent protest known as Satyagraha. First promoted the harmony between religion and first alert uppercase Indian to the discriminatory treatment of the low caste and women. गांधी जी ने लंबी यात्रा के एक लंबा संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। गांधी जी के बारे में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि चंद्रन देवन सेन ने ये कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बनाया। गांधी के आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा हमने अपने पुराने वीडियो में पुरानी क्लास में की है। उनके पूरे संघर्षों के दौरान गांधी जी ने समाज के हर वर्ग के लोगों को, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई, सभी वर्गों का नेतृत्व किया, हर जातियों का नेतृत्व किया। और गांधी जी ये समझ चुके थे कि किस तरीके से आंदोलन को गति दी जा सकती है। गांधी जी के मन में यह भी आ चुका था कि जब तक समाज का हर वर्ग आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं लेगा, आंदोलन पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता, सत्याग्रह कंप्लीट फॉर्म में नहीं आ सकता, चलाया नहीं जा सकता। इसीलिए कह रहा है कि महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्स्ड द डिस्टिंक्टिव टेक्निक ऑफ द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह, फर्स्ट promoted harmony between religion and first alerted the upper caste Indian to their discriminatory treatment of the low caste women. गांधी जी ने मर्म को पकड़ा, ऊंचे वर्ग के लोगों को, अपने समाज के निम्न वर्ग के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करना, अछूत जैसा व्यवहार करने पे रोक लगाने की बात कही, दबाव बनाया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बात की, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने की बात की और सामाजिक और धार्मिक सद्भाव की उन्होंने अपने आंदोलनों में प्रयोग किया। उनका मत था कि जब तक सभी लोग पीस एंड हार्मनी के साथ, सामाजिक सद्भाव के साथ नहीं रहेंगे, हम ताकतवर तरीके से विदेशी सत्ता का विरोध नहीं कर सकते। द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक टू इन 1915 was rather different from the one that he had left in 1893. Although still a colony of British, it was far more active in the political sense. The Indian National Congress now had branches in the most major cities and towns. Though the several movements of 1905 to 7, it had greatly broadened its appeal among the middle class. That movement had thrown up some touring leader. Among them, Bal Gangadhar Tilak of Maharashtra, Vipin Chandra Pal of Bengal, and Lala Lajpat Rai of Punjab. The three were known as Lal Bal Pal, the alliterations conveying all Indian character of their struggle, since their native provinces were very distinct
from one another, where these leaders advocate the militant opposition to colonial rule. There was a group of moderates who preferred a more gradual and the possessive approach. Among these moderators was Gandhiji, acknowledged political mentor Gopal Krishna Gokhale, as well as Muhammad Ali Jinnah, who, like Gandhi, was a lawyer of Gujarati extractions trained in London. My dear, जब गांधी भारत आए तो यद्यपि भारत भी दक्षिण अफ्रीका की तरह ही अंग्रेजों की एक कॉलोनी थी, लेकिन गांधी जी जब भारत से गए थे 1893 का टाइम, और गांधी जी जब भारत आए 1915 का टाइम में काफी अंतर आ चुका था। अब भारत में भारतीयों की राजनीतिक संस्था बन चुकी थी, राजनीतिक आंदोलन चलाए जा रहे थे। राजनीति में दो वर्ग काम कर रहा था, गर्म दल और नरम दल। 1905 से 1907 का बंग भंग विभाजन और फिर पूरे भारत में इस आंदोलन में हुए कार्य इस बात के लिए प्रमाण थे कि आंदोलन एक सिस्टमैटिक वे से चल रहा था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तीनों अलग अलग प्रांतों से थे, एक पंजाब से थे, एक बंगाल से थे, एक महाराष्ट्र से थे, लेकिन तीनों ने उग्रवादी तरीका अपनाया। भारतीयों ने इनको पसंद किया, भारतीय लोगों ने, और ये लोग एक महत्वपूर्ण संगठनकर्ता के रूप में भारतीय युवाओं को प्रभावित करने में सफल रहे। दूसरी तरफ मॉडरेटर्स का ग्रुप था। ये मॉडरेट लोग, उदारवादी लोग का मानना था कि यदि हम अंग्रेजों का साथ दें, अंग्रेजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो एक दिन आएगा जब अंग्रेज हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, हमें हमारे अधिकार सौंप देंगे। गांधी जी के मेंटर, पॉलिटिकल टीचर गोपाल कृष्ण गोखले इसी मॉडरेट ग्रुप के थे, उदारवादी धड़े के थे। उनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना, जो गांधी जी की तरह ही गुजरात से थे और लंदन में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की थी। ऑन गोखले एडवाइस, Gandhi ji spent a year traveling around British India, getting to know the land and its people. His first major public appearance was at the opening of the Banaras Hindu University (BHU) in February 1916. गांधी जी की सलाह गांधी जी को एक सलाह दी उनके गुरु ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके मेंटर थे, पॉलिटिकल टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि गांधी, आप एक बार पूरे भारत का भ्रमण कर लीजिए। जब तक आप भारत के लोगों को नहीं समझ पाएंगे, भारत की परिस्थितियों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपके लिए राष्ट्रीय आंदोलन भारत के लिए चला पाना मुश्किल होगा। गांधी जी ने एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने अपना पहला स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था 1916 में, फरवरी के महीने में। ये तो जनरल चीज़ें थी। मैंने अपने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी की स्पीच पर चर्चा की थी। अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि जब गांधी की वापसी हुई, गांधी जी ने 1915 में जब भारत लौटे तो जनता ने गांधी जी का बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। केवल पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अनपढ़ और देहाती भी गांधी जी के बारे में जान गए थे और उनके प्रति आदर का भाव रखते थे। गांधी जी जब हरिद्वार के कुंभ मेले में गए तो उनके दर्शन के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोखले ने पहले ही भारतीयों में घूम घूम कर यह कह दिया था कि गांधी जी में वो सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। गोखले ने कहा, गांधी जी ने लोगों को सम्मोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। वह आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए
जब तक समूची स्थिति का अध्ययन न कर ले। एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को एक महान लीडर के रूप में प्रोपोगेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी भी इस बात से सहमत थे कि जब तक वो अपनी नीतियों से लोगों को प्रभावित न करें, तब तक उन्हें नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। गोखले ने भी गांधी जी को यही सलाह दी थी। गांधी जी ने निर्णय किया कि फिलहाल वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। वो साल भर देश का दौरा करते रहे, टूर करते रहे, अहमदाबाद में अपने आश्रम को जमाने का काम करते रहे। गांधी जी के समर्थक और दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ आए थे, उन सबको आश्रम में बसाने का काम चल रहा था। दूसरे साल भी गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उसमें होम रूल आंदोलन पूरे देश में जोर पे था, लेकिन गांधी जी इसमें शरीक नहीं हुए थे। उसमें भारत में जितनी भी राजनीतिक धाराएं थीं, गांधी जी के विचार किसी से मेल नहीं खाते थे। नरमपंथी राजनीति में उनकी आस्था कब की खत्म हो चुकी थी। वो होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। इस रणनीति के तहत प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ते ही होम रूल आंदोलन छिड़ा गया था। गांधी जी इस रणनीति स्ट्रेटजी के खिलाफ थे। गांधी जी का मानना था यदि हम अंग्रेजों को परेशान करेंगे तो अंग्रेज हमें कभी स्वतंत्रता नहीं देंगे, वो हमारे हित में कभी नहीं सोचेंगे। जब होम रूल आंदोलन चला तो इस होम रूल आंदोलन में अंग्रेजों ने दबाव की नीति अपनाई। अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता था, लेकिन गांधी जी इस नीति के खिलाफ थे। इसके अलावा वह तत्कालीन संघर्षों के तरीकों से भी गांधी जी असहमत थे। उनका मानना था कि संघर्ष का एकमात्र तरीका सत्याग्रह ही है। सत्याग्रह के तरीके से ही हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। गांधी जी उस समय आंदोलन में भाग न लेने का कारण उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। गांधी जी कहते हैं कि मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूं जब मैं उनकी नीतियों को प्रभावित करूं। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए उसमें शामिल नहीं होऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि नई रोशनी को ग्रहण करने के लिए मेरा दिमाग खुला नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह नई रोशनी इतनी प्रभावी हो, चकाचौंध करने वाली हो कि मुझे संमोहित कर ले। दूसरे शब्दों में गांधी जी केवल इसी आंदोलन से जुड़ सकते थे जो सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहा था या चल रहा हो, जिसमें नॉन वायलेंस की नीतियां अपनाई जाए, जिसमें लोगों के लिए काम किया जाए, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों की भागीदारी हो, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे वो एलिट क्लास हो, चाहे वो गरीब तबका, वर्कर और मजदूर, किसान। जल्दी ही गांधी जी के सामने ये अवसर आ गया। गांधी जी जब 1900 या 1920 के डिकेट्स को ले, मैं एक डेट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसमें 3 आंदोलन चले, 1917 चंपारण, 18 खेड़ा, 18 अहमदाबाद। तो ये जो आंदोलन चल रहे थे, यह अवसर गांधी जी के लिए उपयुक्त था। गांधी जी को अपने प्रयोगों को जनता के बीच उतारने के लिए गांधी जी ने बड़ी चतुराई के साथ, सफलता के साथ इसका उपयोग किया। माय डियर, मैंने अपने पहले 22 जनवरी की वीडियो में इस बात पर उल्लेख किया है, आप उसको देखें। वहां पे मैंने चंपारण की पूरी बात कही है, किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा नील मजदूरों के ऊपर जाति की जा रही थी। आइए देखते हैं, फिर मैं एक बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। गांधी जी ने जो विचार दिया कि मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूं जब तक मैं उनकी नीतियों को प्रभावित न कर लूं, और मैं उनकी नीतियां प्रभावित करने के लिए उसमें शामिल नहीं होऊंगा, कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी नीतियों से अपने को प्रभावित नहीं करना चाहता, बल्कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि रोशनी इतनी चकाचौंध हो कि वो मुझे प्रभावित करे।
मुझे सम्मोहित कर ले तभी मैं उसमें शामिल होऊंगा। गांधी जी की जो ये बात थी निश्चित रूप से अपने में यूनिक थी। गांधी जी नेतृत्व तो अपने हाथ में लेना चाहते थे, ऐसे कहें तो ज़्यादा अच्छा है। गांधी जी के इन विचारों का मतलब ये नहीं था कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। ये तीनों संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों को जोड़कर लड़े गए थे। चंपारण खेड़ा आंदोलनों में किसानों का गांधी जी ने फेवर किया और अहमदाबाद आंदोलन में औद्योगिक मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। चंपारण 19वीं सदी के आरंभ में, 19वीं सेंचुरी के आरंभ से ही जो अंग्रेज बागान मालिक थे उन्होंने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन पर 3/20वें हिस्से पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। इसे 3 कठिया पद्धति कही गई। इसे 3/20 अर्थात 3 कठिया पद्धति ही कहते थे। चंपारण 19वीं सदी के खत्म होने के बाद जर्मनी ने रासायनिक रंगों की डाई नील को बाजार में उतारा और उसने भारतीय नील को मार्केट से बाहर कर दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया। किसानों के अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी टैक्स किसानों के ऊपर थोप दिए गए। 1908 में उनके खिलाफ काफी विरोध भी हुआ, पर बागान मालिकों का लूट का कारोबार अनवरत चलता रहा। किसान बड़े परेशान थे, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। किसान कह रहे थे कि जब नील ही मार्केट में नहीं है तो नील की खेती बंद होनी चाहिए, लेकिन बागान मालिक कह रहे थे कि हमने आपसे अनुबंध किया है और हम आपको इससे मुक्ति के लिए आपको इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, और उनके ऊपर एक हाई टैक्स लगा दिया। 1917 में चंपारण में ये विद्रोह बड़ा स्वरूप लिया तब जब चंपारण के एक पीजेंट्स राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल पहुंचे, गांधी जी से वार्ता की और चंपारण के लोगों की लड़ाई के लिए गांधी जी को तैयार कर लिया। गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट के लिए यात्रा की, चंपारण पहुंचे। चंपारण की परिस्थितियां बड़ी ड्रामेटिकली तरीके से बदली, एक बड़ा बदलाव आया। गांधी जी जैसे चंपारण पहुंचे, कमिश्नर ने उन्हें वहां से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उसके लिए किसी भी दंड को भुगतने का फैसला गांधी जी ने कर लिया। लोगों के लिए आश्चर्यजनक कदम था। तिलक, एनी बेसेंट के लिए भी यह नई चीज थी, क्योंकि इन लोगों को जब भी इस तरह के आदेश दिए गए थे, उनका विरोध करते हुए उन्होंने इसका पालन नहीं किया था। किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा और उसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध वास्तव में एक नई चीज थी। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस उद्देश्य को तूल नहीं देना चाहती थी। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट का निर्देश दिया। यह गांधी जी की जीत थी। वह अपने काम में लग गए। यहां भी उनके काम का तरीका अनोखा था। वे अपने सहयोगी ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ सवेरे गांव से निकल जाते। माय डियर स्टूडेंट, हमने जो गांधी जी के बारे में अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मूवमेंट के बाद भारत उनका आगमन हुआ और भारत के बाद उन्होंने भारत में आने के बाद अपनी नई जो सोच भारतीयों के अंदर आ चुकी थी कि
गांधी एक मसीहा के रूप में है, जिसको उनके मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले ने लोगों में प्रोपोगेट किया था कि गांधी के अंदर लोगों को वीर बनाने के लिए, लोगों के अंदर का डर निकालने की अजीब क्षमता, अद्भुत क्षमता है। और इसके थ्रू गांधी जी की ख्याति बढ़ रही थी। उसको गांधी जी ने चंपारण में प्रूफ किया। चंपारण के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी कि किस तरीके से चंपारण पे हुआ। गांधी जी का 2 आंदोलन और, अहमदाबाद जो मिल मजदूरों के लिए था और खेड़ा जो किसानों के लिए था। मतलब 1917 और 1918 में 2 वर्षों में गांधी जी ने जो 2 आंदोलन चलाए वो किसान और मजदूरों के लिए थे। चंपारण और खेड़ा किसानों के लिए थे और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए चलाए गए आंदोलन थे। हम इन दोनों आंदोलनों को विस्तार से पढ़ेंगे। चंपारण को हमने पढ़ लिया है, हम खेड़ा और अहमदाबाद को पढ़ेंगे और फिर हम खिलाफत, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मस्केयर और फिर नॉन कोऑपरेशन पे बात करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अपनी क्या परिस्थितियां थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कितना सफल हुआ, इन सारी चीज़ों पर डिटेल करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से गांधी इसमें सफल हुए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।